Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publisher Video Lectures. Today's lecture is from Science of Grade 7 and we are going to start a new chapter that is about reproduction in plants. You might have brief introduction of the term reproduction. The concept you might have known is that reproduction is the continuity of race. Plants give rise to young plants, animals give birth to young animals, and the race continues. It's called reproduction. That will be your concept that up till now. But when we study further and in depth, we came to know that reproduction have a vast canvas, a vast meaning. So to understand the reproduction in actual, look upon these two pictures and compare them. Here is a young plant, young sunflower plant. This plant grows into a mature sunflower plant. And this mature plant is exactly similar to its parent plants. Why it happens so? Why not the young plants grow differently or show new features? Why is young plant exactly similar to its parent plant? Or why is plant of one kind different from the rest? So you observe sunflower plant. It has yellow flowers, large flowers, big leaves. Leaves are hairy, and the sunflower move along with the direction of sun. Where there is a sun, there is a sunflower. But a jasmine plant bears white flowers. It also has green leaves, but not as big as that of sunflower. Its flowers have sweet aroma. These flowers do not move along the direction of sun. So why these two plants are different? Which thing make them different actually? It is because plants transfer their features to their coming generations. Jasmine flower transfer its specific features, flower color, petal numbers, plant height, leaf color, leaf texture, etc. These are the features that are transferred from one generation to another in a plant. So the transference of these features to the coming generation is called actually reproduction. It is called reproduction. And how do plants transfer their characters from one generation to another? What is the source? What is the carrier for the transference of characters? In flowering plant, this carrier is seed. Plants produce seeds by the combination of male cells as well as female cells. When both types of cells or both parents involve in the process of reproduction, it is called sexual reproduction. And the first step in the sexual reproduction is pollination, preceded by fertilization. And in our present chapter, we are going to study the first step, pollination, and then in the upcoming lectures, we will discuss in detail the fertilization, a second step in the seed formation. So the today's lecture is about pollination and its types. Pollination is the first step in seed formation. The SLO that will be achieved through this lecture is define pollination and compare self and cross pollination in plants. The self pollination and cross pollinations are types of pollination that happens in plants. Besides these two SLOs, we will also investigate the plants which are cross-pollinated. We'll see what are those plants which are cross-pollinated and why are they cross-pollinated. We'll find the support from our textbook at page 23, 32 and page 33, where there is a topic headed by pollination and the topic number is 3.1. Pollination is a process that is related to flowers. Pollination takes place in flowers. So before exploring the process of pollination, it would be better if we study or if we go through or revise
the structure of a flower again. Here you can see a detailed structure of flower. Flower has 4 parts. Number 1 is sepal, that is outer, very outer green wall of leaves. It is actually the protective layer of flowers, which is called sepal. Individual leaf is called sepal, whereas the collection of all green leaves in flower is called calyx. And the other wall, which is very colorful and attractive, is called petal. Individual colored leaf is called petal, and the collection of all colored leaves is called corolla. But we are not concerned with sepals and petals when we talk about pollination. Pollination mainly concerns with female parts and male parts. Petals somehow affect pollination due to its colors. Insects, birds and other animals attract towards plants due to their beautiful colors and aroma. So it is the very first stage that is necessary to initiate the process of pollination. And the role of petals will be discussed in our second lecture. Here we are concerned with female parts and male parts. Female parts, as you can see, lies at the center of a flower. It is further divided into 3 parts. The topmost part is called stigma. Stigma is connected to the lowermost part, that is ovary, through a long tube which is called style. Style ended into and opens into ovary. Ovary is the actual place where pollination and fertilization takes place. Ovary is the actual place where fertilization takes place because it contains ovule and ovules contain egg. Egg is the female cell that carries all the genetic information about the plant. This is the cell that will combine with the sperm of male plant. These 3 parts are collectively called pistil or carpel. Next comes the male part. Here is the male part, a long filament with a bulgy part at its topmost. This bulgy part is called anther, which is connected with the base of flower with a long structure that is called filament. Anther actually takes part in pollination because it contains with pollen grains. These pollen grains contains 2 sperm. There are 2 sperms in each pollen grain. The whole anther is covered with many pollen grains containing 2 sperms in each. And these 2 parts, anther and filament, are collectively known as stamen. Stamen is the male part of a flower. If you look at this picture carefully, there are the stamens of a flower. It's the actual picture of stamen taken at high resolution. It's the filament which connect the stamen at the base of the flower, and these are the anther. आप देख सकते हैं कि एंथर के ऊपर पाउडर लाइक स्ट्रक्चर अटैच है पूरे एंथर पे. अब ये जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली पोलन ग्रेन्स हैं, और ये वो पोलन ग्रेन्स हैं जिनमें स्पर्म्स प्रेजेंट हैं. वो स्पर्म्स जिन्होंने एग के साथ यूनाइट करना है फर्टिलाइजेशन के लिए. यही वो पोलन ग्रेन्स हैं जो स्प्रिंग सीजन में एलर्जी कॉज करते हैं कुछ लोगों में और अस्थमा का बायस भी बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं तो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं इजीली. तो प्लांट का स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद हम पोलिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस एंथर पे मौजूद पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्टिग्मा पे, क्योंकि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे फॉल करेंगे तो ही वो एग तक एक्सेस ले सकते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन जो कि नेक्स्ट स्टेप है सीड फॉर्मेशन का हो सके. सो हम डिफाइन कर लेते हैं पोलिनेशन को कि इट इज़ द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, दैट इज द मेल पार्ट, टू स्टिग्मा, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. अब ये ट्रांसफरेंस डिफरेंट मोड्स के थ्रू होती है.
ये भी हो सकता है कि एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफरेंस हो सके। ये भी हो सकता है कि एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक हो सके, लेकिन जब दूसरा फूल सेकंड फ्लावर इन्वॉल्व होगा पॉलिनेशन में, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि वो फ्लावर सिमिलर स्पीशी का होना चाहिए। पॉलिनेशन उसी वक्त इफेक्टिव होगी जब बोथ इन्वॉल्विंग फ्लावर्स आर ऑफ सेम स्पीशी। अगर एक टाइप के फ्लावर के यानी एक स्पीशी के फ्लावर के पोलन किसी दूसरी स्पीशी के फ्लावर्स पे फॉल करेंगे तो पोलिनेशन इफेक्टिव नहीं होगी, इसका नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन प्रोसीड नहीं करेगा। यानी अगर जैस्मिन प्लांट के पोलन ग्रेन्स सनफ्लावर प्लांट के स्टिग्मा पे फॉल करेंगे तो पोलिनेशन इफेक्टिव नहीं होगी। लिहाजा दोनों फ्लावर्स का यानी रिसिपिएंट का भी, वो फ्लावर जिसमें से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं और जिस प्लांट पे पोलन ग्रेन गिर रहे हैं, दोनों फ्लावर्स एक ही स्पीशी के होने चाहिए। अगर पोलन ग्रेन जैस्मिन फ्लावर का है तो स्टिग्मा भी जैस्मिन का ही होना चाहिए। यहां से हम फ्लावर्स की दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फ्लावर की एक टाइप है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक ही स्पीशी के एक टाइप के फ्लावर पे सिर्फ एक ही तरह का जेंडर या एक ही सेक्स प्रेजेंट है, यानी किसी एक तरह के फ्लावर पे सिर्फ पोलन प्रेजेंट्स है, स्टेमन प्रेजेंट्स है, ये मेल प्लांट है, मेल फ्लावर, और इसी की दूसरी टाइप पे फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये पिस्टल है जो कि फीमेल पार्ट है और ये स्टेमन्स हैं जो कि मेल पार्ट है। अब यहाँ पे अगर पोलिनेशन होगी तो अल्टीमेटली दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे। एक टाइप के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स फॉल करेंगे दूसरे टाइप के स्टिग्मा पे, इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और जब दो तरह के फ्लावर्स इन्वॉल्व हों तो इस टाइप की पोलिनेशन को कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस मीन दो तरह के, एक से ज्यादा टाइप के फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। फ्लावर्स की दूसरी टाइप है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब यह है कि इसमें दोनों तरह के सेक्सेस, दोनों तरह के पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट हैं। जैसा कि ये फ्लावर आपके सामने है, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे जाने की बजाय इसी फ्लावर पे फॉल कर दे। तो इस तरह की पोलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ये आपके सामने एक और पिक्चर है, पपाया फ्लावर्स हैं, ये फीमेल पार्ट है यानी फीमेल फ्लावर है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ पिस्टल पार्ट है और ये मेल प्लांट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका स्टेमन है, ये बल्जी पार्ट एंथर जो, और ये वाइट पार्ट वो छोटा सा है, ये फिलामेंट है। सो इनमें भी क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। अब एक बार अपनी बुक से भी स्टडी कर लेते हैं कि ये सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन एक्चुअली में क्या है। सेल्फ पोलिनेशन is a type of pollination occurs when pollen grains from the anther fall directly on the stigma of the same flower। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्फ पोलिनेशन में एक ही तरह के फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे। It is the basic type of pollination as it only involves one flower. Obviously it only involves one flower. This type of pollination is simple and quick. It results in identical transfer of genetic information. इस बात का क्या मतलब है कि चूंकि एक ही फ्लावर्स के सेल्स इन्वॉल्व हैं, मेल पेरेंट भी सेम फ्लावर से है और फीमेल पेरेंट भी सेम फ्लावर से है, सो इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी, एक ही प्लांट के तमाम कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे।
जो सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू जनरेशन नहीं बनेगी उसमें कोई भी वेरिएशन, कोई भी कैरेक्टर्स, फीचर्स की वेरिएशन, कलर, हाइट में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। एग्जैक्टली सिमिलर या एग्जैक्टली कॉपीज प्लांट प्रोड्यूस होंगे सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में जो कि है जिसमें दो तरह के फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं। This type of pollination occurs when pollen grains from the anther of one flower fall onto the stigma of the different flower of the same plant. Species same होगी plant की, लेकिन flowers different होंगे। यानी हो सकता है कि एक प्लांट आपके गार्डन में लगा हो और दूसरा प्लांट आपकी छत पे लगा हो सनफ्लावर का, तो प्लांट्स अलग अलग हैं, स्पीशीज सेम है। एक स्पीशीज लगी हुई है, स्पीशीज सेम है जो कि सनफ्लावर है, लेकिन प्लांट्स डिफरेंट है। एक प्लांट सन गार्डन में लगा हुआ है और दूसरा छत पे लगा हुआ है, तो अगर इन दोनों प्लांट्स में पोलिनेशन होगी तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगी। इट इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोलिनेशन एट इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट फ्लावर्स। दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू क्रिएट यूनिक ऑफस्प्रिंग्स। अब चूंकि दो डिफरेंट तरह के प्लांट्स इन्वॉल्व हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूर आएंगी। प्लांट की हाइट के लिहाज से, उनमें पेस्ट कंट्रोल कैपेसिटी के लिहाज से, फ्लावर्स के कलर्स या उनकी अरोमा के लिहाज से, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ वेरिएशंस क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स में ज़रूर हमें देखने को मिलती हैं। और इसकी रीज़न क्या है कि ये इसमें दो तरह के प्लांट्स इन्वॉल्व हैं। दो तरह का मतलब दो प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो दोनों प्लांट्स सिमिलर स्पीशी के हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू डेवलप होते हैं वो कौन कौन से हैं। These plants include grasses, alfalfa, banana, maize, catkins, dandelions, maple trees, etc. ये तमाम वो प्लांट्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जिनमें जनरेशंस आती हैं। A large number of crops that can cross pollinate are squash, pumpkins, cucumber, melon, broccoli, summer radish, tomato, beans, beets, carrot, cabbage, cauliflower, corn, onion, pea, pepper, spinach, turnip, watermelon। इनमें से बेशतर क्रॉप्स को आज से आप फेमिलियर हैं और कुछ से ऐसे फेमिलियर नहीं हैं। तो जिन क्रॉप्स या फेमिलियर नहीं है आप उनको इंटरनेट पे इजीली देख सकते हैं। अब इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ये बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यानी इनमें दोनों सेक्सेस, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे प्रेजेंट नहीं होगा। एक रीज़न तो ये है कि ये बाइसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे इनमें। और दूसरी रीज़न क्या होगी, ऐसे प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन की वजह क्या होगी कि या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हाइबिस्कस का प्लांट है जिसमें दोनों सेक्सेस अलग अलग प्रेजेंट हैं। एक फ्लावर पे सिर्फ और सिर्फ इस फ्लावर पे मेल पार्ट प्रेजेंट है, ये स्टेमन है, मेल पार्ट है, जबकि ये वाला फ्लावर फीमेल फ्लावर है। या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हैं तो हो सकता है कि वो बहुत डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो। तो क्योंकि बहुत से एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस पोलिनेशन में, तो किसी भी एजेंट के एक्शन के थ्रू इनमें क्रॉस पोलिनेशन डेवलप हो सकती है। और ये वो तमाम प्लांट्स हैं जो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क अपना पहला टेस्ट एक्सरसाइज 1 से करेंगे। इस टेस्ट एक्सरसाइज का पार्ट ए आपको पेज 35 पे मिलेगा और पार्ट बी आपको नेक्स्ट पेज 36 पे मिलेगा। पार्ट ए है फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। सो यू आर प्रोवाइडेड विद अ स्टेटमेंट फॉलोइंग बाय 4 ऑप्शंस। यू हैव टू एनालाइज केयरफुली द स्टेटमेंट and then find out the right option from these 4 options. The first one that you will solve is what is the first step of sexual reproduction in plants. Plants में sexual reproduction का सबसे पहला step कौन सा है? क्या वो pollination है, fertilization है, seed formation है या flower production है? अगर आपने लेक्चर को केयरफुली अटेंड किया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। The process that helps in development of new species of plants is, प्लांट्स में न्यू स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस है? सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या बडिंग? इसमें से भी आप राइट ऑप्शन के सर्कल को फिल करेंगे।
फिर आप नंबर 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द प्लांट दैट कैन क्रॉस पॉलिनेट विद अदर स्पीशीज ऑफ इट्स फैमिली इज कैरेट, रेडिश, स्पिनिश, कॉलीफ्लावर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बॉक्स में मिलेगा। सो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, उसमें क्रॉस पोलिनेटेड के टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का एक बॉक्स होगा। आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देन कम्स द पार्ट बी एट पेज 36। आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब है कि आपने अपने क्वेश्चन को 3 से 4 सेंटेंसेस में वाइंड अप करना है। नंबर 1 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, दैट इज डिफाइन पोलिनेशन। पोलिनेशन की एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आप लिखेंगे। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। दोनों टाइप्स आपने पढ़ी हैं, इनकी डायग्राम्स भी देखी हैं। सो इन दोनों में क्या फ़र्क है वो आप बयान करेंगे। नंबर 5th क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, नेम सम क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर प्लांट्स। आपने क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स की बहुत से एग्जांपल्स पढ़ी हैं, इनमें से एटलीस्ट 5 को आप यहाँ कोट करेंगे। देन कम्स द रिव्यू एक्सरसाइज विच दैट यू विल फाइंड ऑन पेज 39 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। The part A of review exercise is to fill the circle of correct option against each statement. Again, you are provided with a statement followed by 4 options. You have to analyze the statement and then find out the right answer from the options. What is the colorful part of flower? आपने flower का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें से जो colorful part है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्या वो उन्हें पेटल्स कहा जाता है, सेपल्स कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है या कार्पल कहा जाता है? जो भी इनका साइंटिफिक नेम है आप उसका सर्कल फिल करेंगे। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आज के लेक्चर से रेलिवेंट नहीं है। नंबर 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि इसमें मेल पेरेंट भी इन्वॉल्व है और फीमेल पेरेंट भी इन्वॉल्व है, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। जो भी इसका फर्स्ट स्टेप होगा आप उसको मार्क करेंगे। फिर आते हैं नंबर 4 MCQ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स। अब आपने वो प्लांट आइडेंटिफाई करना है जो कि क्रॉस पोलिनेशन से ग्रो नहीं करता, जिसकी नेक्स्ट जनरेशन क्रॉस पोलिनेटेड नहीं है। क्या वो कोकम्बर है, मेलन है, सनफ्लावर है या रेडिश है? अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को गौर से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ इसकी एग्जाम्पल मिल जाएगी कि क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स कौन से नहीं हैं। अब आप आइए अपने पेज 40 पे, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का रिमेनिंग पार्ट है। इसमें से आप क्वेश्चन 7 देखिए। अपर पार्ट ऑफ द ओवरी इज। ओवरी का अपर पार्ट कौन सा है? एंथर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है या फिलामेंट है? जो भी राइट आंसर होगा आप उसका सर्कल फिल करेंगे। फिर आइए आप पार्ट बी की तरफ। बाकी के MCQ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। यहाँ की वही है कि आपने अपने आंसर को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, यानी 3 to 4 सेंटेंसेस में उसका आंसर वाइंड अप करना है। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। पोलिनेशन इज द एसेंशियल स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ? पोलिनेशन की जस्टिफिकेशन देनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पोलिनेशन ही एसेंशियल स्टेप क्यों है। अगर पोलिनेशन ना हो तो क्या होगा? क्या सीड फॉर्मेशन हो जाएगी या नहीं होगी? फिर आप क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन एंड कार्पल प्लांट्स के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक मेल स्ट्रक्चर है, एक फीमेल स्ट्रक्चर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ तो हम अभी बता चुके हैं, बाकी आप डिस्कस करेंगे। हो सके तो इसकी डायग्राम भी बनाइएगा। ये जो नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर का फंक्शन पोलिनेशन में भी आता है और जो नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें भी आएगा। तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेज पढ़ी है, इसलिए अभी इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग कर देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। जब हम फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके बाद आइए पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में है क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन इन प्लांट्स। पोलिनेशन की दोनों टाइप्स जो कि सेल्फ और क्रॉस हैं आपने पढ़ी हैं, आप इनका कंपैरिजन करेंगे। बेहतर है कि इनका कंपैरिजन दरमियान में लाइन लगाइए, एक तरफ सेल्फ पोलिनेशन लिखिए, एक तरफ क्रॉस पोलिनेशन, तो इनका कंपैरिजन करिए और इनकी डायग्राम भी बनाइए, क्योंकि ये आपका इन डिटेल क्वेश्चन है और इन डिटेल क्वेश्चंस में डायग्राम्स ज़रूर बनानी चाहिए। यहाँ तक कर लेने के बाद आप अपने समर पैक पे आएंगे। समर पैक ओपन कीजिए, पेज 28 पे। SLO1 और SLO2 हमने आज डिस्कस किए हैं। इनसे रिलेटेड आप एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्टिविटी सॉल्व करने से पहले आप ये इसका ब्लू सेक्शन ज़रूर सॉल्व करेंगे, जिसमें आप पहले ये बताएंगे कि ये SLO की लोकेशन क्या है। SLO अगर आप बुक में फाइंड आउट करें तो आपको कहाँ से मिलेगा। फिर आप अपने इस SLO का पर्पस बताएंगे, ये SLO पढ़ेंगे कि ये SLO हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। SLO का पर्पस पढ़ने के बाद आप एक्टिविटी 3.1 सॉल्व करेंगे।
और एक्टिविटी का 3.1 का क्वेश्चन 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नीड बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ प्लांट्स, हाउ। यानी कुछ प्लांट्स सिर्फ मेल प्लांट्स हैं और कुछ प्लांट्स सिर्फ फीमेल प्लांट्स हैं, ऐसा क्यों है, क्या ऐसा होता भी है, इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हमने फ्लावर्स की टाइप्स पढ़ी थी। आप थोड़ा सा अपने लेक्चर को रिकॉल करेंगे तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। कैन अ प्लांट स्पीशीज बी मेल एज वेल एज अ फीमेल एट द सेम टाइम, हाउ। यस, a plant species can be a male as well as female, and we have discussed when we studied about the types of flowers. Number 3 है पेज 29 पे एक्टिविटी 3.1 का रिमेनिंग पार्ट है गिव द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। आप 2 डायग्राम्स बनाएंगे, एक सेल्फ पोलिनेशन की और एक क्रॉस पोलिनेशन की, और बताएंगे कि ये कैसे मुमकिन है। सेल्फ पोलिनेशन में आप एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को मूव करता हुआ दिखाएंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा की तरफ, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में आप 2 फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे और एक फ्लावर में आप स्टिग्मा को हाईलाइट करेंगे और पहले फ्लावर में आप पोलन को हाईलाइट करेंगे, यानी स्टेमन को हाईलाइट करेंगे, और स्टेमन से पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट दिखाएंगे स्टिग्मा की तरफ, जैसे कि आपने वीडियो में डायग्राम में देखी थी। ये आपका समर पैक से आज एक्टिविटी का होमवर्क है। ये करने के बाद आप पेज 34 पे आएंगे और समर पैक के और MCQ सेक्शन सॉल्व करेंगे। इसमें से आप क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। पोलिनेशन इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुल व्हेन। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि पोलिनेशन उसी वक्त कंसिडर हो सकती है जबकि उसकी कुछ कंडीशंस भी थी कि कब पोलिनेशन सक्सेसफुल हो सकती है। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और जो भी राइट आंसर है आप उसको फाइंड कीजिए। करेक्ट आंसर फाइंड करने के बाद आप उसकी रीज़न भी बताएंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों पोलिनेशन सिर्फ उसी कंडीशन में सक्सेसफुल हो सकती है। द टर्म डस्ट ऑफ फाइन फ्लोर वॉज यूज्ड फॉर। डस्ट ऑफ फाइन फ्लोर क्या है, क्या वो एग्स हैं, क्या वो पोलन्स हैं, सीड्स हैं या फ्लावर्स हैं। जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको उसके ऑप्शन को मार्क करेंगे और फिर उसकी रीज़न भी बताएंगे। नंबर 9 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रॉस पोलिनेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ पोलिनेशन इज ड्यू टू। अब यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन का सेल्फ पोलिनेशन के साथ कंपैरिजन है। क्रॉस पोलिनेशन रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लावर्स इज इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें क्रॉस पोलिनेशन में ज़्यादा फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं, या फिर नंबर ऑफ पोलन्स इन्वॉल्व, या फिर नंबर ऑफ पोलन्स की वजह से, या फिर साइज ऑफ फ्लावर्स इन्वॉल्व। हो सकता है कि क्रॉस पोलिनेशन में जो फ्लावर्स इन्वॉल्व हों वो लार्जर या स्मॉलर साइज़ के हों, या फिर कलर ऑफ फ्लावर्स की वजह से। और जो भी इसकी रीज़न है वो आपने फाइंड करने के बाद उसकी रीज़न बतानी है। अगेन नंबर 10 MCQ आप पहले टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर चुके हैं, इसको दोबारा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ विच वन इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। या ये सीड फॉर्मेशन है, पोलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है या फ्रेगमेंटेशन है। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है वो आपने फाइंड करने के बाद उसकी रीज़न बतानी है। फिर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर अ रिजल्ट ऑफ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की आइडेंटिकल कॉपीज़ यानी जो प्लांट्स प्रोड्यूस हों वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से सिमिलर हों, इसकी वजह क्या है? क्या ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है, या ये सेल्फ पोलिनेशन में ऐसा होता है, या क्रॉस पोलिनेशन में होता है, या फर्टिलाइजेशन में होता है? तो जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उसको फाइंड करने के बाद उसकी रीज़न बताएंगे। नंबर 12 MCQ को आप इस लेसन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट जब हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट्स इन न्यू एनवायरनमेंट कैन बी मेड पॉसिबल बाय सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि प्लांट्स इस काबिल हों कि वो न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। ऐसे प्लांट की स्पीशी में ये कैरेक्टर्स किस वजह से आता है? क्या वो सेल्फ पोलिनेशन की वजह से आता है, क्रॉस पोलिनेशन की वजह से आता है, फर्टिलाइजेशन की वजह से आता है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आता है? राइट आंसर फाइंड करने के बाद आप उसकी रीज़न भी बताएंगे। MCQ सॉल्व करने के बाद आप समर पैक में क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ आएंगे। ये SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको आप आंसर करेंगे पेज 35 पे। इसमें से क्वेश्चन 5 आप सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट पोलिनेशन इन प्लांट्स? प्लांट्स में पोलिनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? आप इसे ब्रीफली लिखेंगे। देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज़ द पोलिनेशन इन सनफ्लावर डिफरेंट फ्रॉम दैट टेक्स प्लेस इन ग्रासेस? ग्रासेस में होने वाली पोलिनेशन सनफ्लावर में होने वाली पोलिनेशन से कैसे मुख्तलिफ है? कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप डिस्कस करके यहाँ पे डिफरेंस बताएंगे। फिर आप
पेज 36 पे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हाउ डज क्रॉस पोलिनेशन डिफर फ्रॉम सेल्फ पोलिनेशन, गिव अ प्रूफ ऑफ योर ओपिनियन। आपने इन दोनों का कंपैरिजन बताना है और इनका प्रूफ देते हुए अगर आप फ्लावर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन आंसर होगा। फिर आप क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। वाई इज सेल्फ पोलिनेशन कंसिडर्ड एज अ सिंपल टाइप ऑफ पोलिनेशन विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस पोलिनेशन। इसमें भी आपने सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन का कंपैरिजन बताना है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बताना है कि सेल्फ पोलिनेशन इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन इज़ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये इसकी रीज़न आपने देनी है। नंबर 9 क्वेश्चन देखिए। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ पोलिनेशन इन प्लांट्स। इसकी इंपॉर्टेंस आप यूँ लिखेंगे कि पोलिनेशन का पर्पस तो आपको पता है कि क्या होता है, अगर पोलिनेशन का प्रोसेस ना हो तो प्लांट पे क्या इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा सोचेंगे और आप इसमें इजीली डिस्क्राइब कर सकेंगे। नंबर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन द पोलन फ्रॉम जैस्मिन फ्लावर फॉल्स ऑन द सनफ्लावर प्लांट। अगर जैस्मिन प्लांट से पोलन ग्रेन्स फॉल करें सनफ्लावर प्लांट के स्टिग्मा पे तो क्या होगा, क्या पोलिनेशन इफेक्टिव होगी या पोलिनेशन इनइफेक्टिव होगी। दोनों सूरतों में नया प्लांट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, इस बात को आप डिस्कस करेंगे। फिर आप नंबर 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैन अ प्लांट शो बोथ टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, इफ़ यस देन गिव एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें दोनों तरह की पोलिनेशन हो सकती है, सेल्फ पोलिनेशन भी और क्रॉस पोलिनेशन भी। अगर ऐसा हो सकता है तो आपने रीज़न भी बतानी है कि ऐसा क्यों हो सकता है, और फिर आपने उस प्लांट की एग्जाम्पल भी बतानी है। आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।